اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيم.
Rania Azin of class 7 to give a speech on teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Teachers Day to all the teachers. Myself, Vania Azin, studying in class 7 from Apex National School. डियर टीचर्स, दिल से शुक्रिया हमारा भविष्य सजाने के लिए। आपकी डांट कड़वी तो लगती है, लेकिन जरूरी है हमें गलत से बचाने के लिए। कैसे है आगे बढ़ना आप ही ने सिखाया है, बुरी चीजों से दूर रहना भी आप ही ने समझाया है। दिल से शुक्रिया बोर्डिंग सी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्लास में कभी कम मार्क्स आए तो मोटिवेट करने के लिए। हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने बढ़ाई है, लेकिन ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। थैंक यू सो मच आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए। टीचर्स ना हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं। कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं तो कुछ पेरेंट्स की तरह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बात बात पर डांट दे, लेकिन टीचर्स ही हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होते हैं। डियर टीचर्स, thank you so much for always guiding us and for always helping us and for always being in our life. We are very grateful to have such teachers in our life. Thank you, Nobata. Confidence. Now, dear teachers and friends, as you can never forget the beautiful memories made with teachers. So now, class 9 students are here with a case titled as Memories of Teachers. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Yes. How are you, Aisha? You came after so many years to India for celebrating Teachers' Day. So I thought to come here. Did you remember our old teachers like Norshin ma'am, Nabila ma'am? Yes, of course I remember them. Do you remember Priya ma'am? How nicely she used to explain us. Of course I remember her. Because of her only my English became good. Did you remember our teachers like Ibrahim sir, Shahid sir, and Shabana ma'am? Yes, I remember them. Because of their motivation only, I went abroad. Yes, we got a chance to celebrate Teachers' Day. Did you remember Javed sir? Of course I remember him. Because of him only, maths became so nice in our school. Yeah, that too. After joining Naseem sir, our Apex institute got very much improved. Yes, I also heard the same. Now we have chance to meet our teachers on Teachers' Day. Yes. Yes, we can surprise them by our creative ideas. Let's open our 2025 diary and see what memories we have created. I have one. I want to dedicate this poetry to Priya ma'am. सपने हमारे बंद पिंजरे में कैद थे, सपने हमारे बंद पिंजरे में कैद थे, उन्हें एक नई उड़ान दी आपने, खुला आसमान और नई मुस्कान दी आपने. Now I have one. I want to dedicate this to Devada. पंख थे पर सुकून ना था, पंख थे पर उड़ तो नहीं सकते थे. उन पंख थे पर सुकून ना था, पंख थे पर सुकून ना था. उड़ने के लिए हिम्मत दी आपने. उड़ तो सकते थे पर जुनून ना था. सपने तो थे पर डर भी था, सपने तो थे पर डर भी था. उन सपनों को साकार करने की हिम्मत दी आपने. That was nice. I also found one. This I wanted to dedicate Amrit sir. जब आपके हौसले की छाया पड़ी, जब आपके हौसले की छाया पड़ी, तब उड़ना सीख गए. अब हवाओं से तो क्या, तूफानों से भी लड़ना सीख गए. मुश्किलों से तो क्या, I want to dedicate this poetry to Sayyidani. जब कामयाब हो गए एक बार तो बहुत मेहनत करेंगे, भविष्य में आपका बहुत ऊंचा नाम करेंगे. पैसा ही नहीं इज्जत भी कमाएंगे, पैसा ही नहीं इज्जत भी कमाएंगे. जिंदगी के हर मोड़ पर आपको फरियाद करेंगे. Now I want to dedicate to Principal ma'am. हम भटके हुए मुसाफिर का आप बसेरा बन गए. हम भटके हुए मुसाफिर का आप बसेरा बन गए. हमारी अंधेरी रातों का आप सवेरा बन गए. अगर ना होता आपका साया हमारे सर पर, अगर ना होता आपका साया हमारे सर पर, तो शायद ना होते कामयाब जिंदगी पर.
इंसान के भीतर ना जानने वाली उम्मीद जगा दे, हारे हुए इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दे। करम मेरे इतने अच्छे होगी, खुदा आपको मेरा उस्ताद बना दे। I also wanted one. This I want to dedicate to all my teachers. किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई है आपने, किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई है आपने, कि यूं कम की जिंदगी बनाई है आपने। सूरज की रोशनी को कलम से उतारा है आपने, सूरज की रोशनी को कलम से उतारा है आपने, जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है आपने। Now I want to dedicate this poetry to Ibrahim sir. याद आते रहेगी आपकी हर वो बात, याद आते रहेगी आपकी हर वो बात जो थी हमारे मुश्किल वक्त में साथ। उस्ताद तो बहुत से आए हमारी जिंदगी में, उस्ताद तो बहुत से आए हमारी जिंदगी में, लेकिन शायद आप जैसा कोई ना आ पाया। जिस तरीके से आपने प्यार जताया शायद कोई और कर पाया। I want to dedicate this poetry to all my teachers. तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे एक नहीं कई हाथ है, उनमें से मेरे उस्ताद हैं। जिंदगी का असल मतलब बताया आपने, हर किसी से प्रेम करना सिखाया आपने, असल मायने में इंसान बनाना सिखाया आपने। Today on the occasion of Teachers Day, I want to say few words to my teachers. You are the best teacher. I am lucky to have you all, and I am lucky to I'm learning in this Evans International School. I feel so lucky to have you all. You are not just a teacher, but as a friend. You care for us. You show your effort for us. You stand by side for us. For every fear, you were there. We found you for every our mistake to not repeat again. Thank you so much, teachers, for your effort and kindness with all of us. Thank you for your moral support, motivation, and teaching. You are the best guidance, best teachers, and best friends. Thank you for being with us. Thank you for supporting in everything and studies, and thank you for being in our life. And again, Happy Teachers Day to all. Coaching performance. उस्ताद की यादें दिल में बसा लेते हैं, हर पल उनके अल्फाज हमको राह दिखाते हैं। वक्त गुजरता है पर निशान मिलते हैं, उनकी मोहब्बत से ही हम इंसान बनते हैं। Teachers are the ones who turn that much into life and guide us towards success. And today our class 6 students are here with a lively action song titled उजालों का कारवां। उस्ताद से ही रोशन हर रास्ता, उन्हीं से ही चमक हर उजाला। उनका एहसान हम कभी भुला ना सके, वो है हमारी जिंदगी का उजाला।
study throughout the spirit of Ujala Karwa, and I must say, thank you dear students for this energetic performance dedicated to our teachers. And now we move on to the next performance taught by our class 7 student Zarmeet on teachers. Teachers start to sing from dreams, shaping life with glad dreams. And we listen a guiding hand to build the future of our land. Teachers. First of all, a very happy Teachers' Day to all my dear teachers present over here. This day is commemorated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishna, who was the second president of our country as well as great teacher. He always emphasized the importance of education and good teacher. He believed that to build a better nation, a country requires better teachers and declared to celebrate his birthday as the Teachers' Day in 1962, and since then it has become a tradition in our country. They teach us, they learn us, they sold us and punish us, but actually they furnish us. They are the source of knowledge and wisdom. My dear teachers, we never forgot you in our life. Whenever we are thankful and grateful for all your efforts. At last, I will end my speech by saying this Japanese proverb: better than a thousand days to diligent study in one day with a great teachers. उत्साह से बेहतर कोई तोहफा नहीं, दिखाया रास्ता बेपनाह है सही। वो सर सबक नहीं, जिंदगी सिखा देती है, दिल से अंधेरे में चिराग जला देती है। Once again, happy Teachers Day. Thank you. We are the students of class 8. The title of our skit is 2 years left. My 2 years left. Myself then a bad narrator. Past principal Khatika Rimsha, Safiya Sumaya, Navya Afghan, Abdul Abdul Rahman, Jumeirah and Jumeirah of the parents. Our journey to school fees ended when we are young, but as class 8, our semester 2 years are left before we leave these benches and the teachers who shaped us. So the scene will start now. अरे ब्रो स्टेट 2 इयर्स बाकी है, अभी से इमोशनल होने का क्या सीन है? तुम नहीं समझेंगे ब्रो, अभी 8 चल रहा है, फिर 9 फिर 10, उसके बाद सब अलग हो जाएंगे। तुम लोग समझ नहीं पाओगे because 2 years go fast. Think about it. After that, no more morning assemblies, no punishment, no teachers shouting at us, and no one to wake me up when I sleep in class. And no more fun with friends like this. Scene 2, students remembering teachers. Just 2 years are left. I will miss making you all laugh and lovely teachers. During lecture when school ends. Yes, we will really miss all the teachers when school ends. Yes, exactly. I will miss Priya ma'am because she didn't just corrected our grammar but also taught me confident to speak. Javed sir didn't just teach us the number, he taught us patience. In Sayyadani ma'am words, we found our stories that danced in our lesson the courage to take our chance. And Shahid ma'am reminded us to respect our past so we can build our future. Rhymes were taught as codes and formulas but also felt in ourselves. Rabna and Firdaus ma'am lit our heart with a note of Iman, guiding our step on the state and the place part. Deva ma'am didn't just scolded us every day, she taught us discipline for our better future. Scene 4, emotional reflection. In just 2 years, we will walk out of this gate, we will carry books, memories and the lessons our teacher gave us. But one thing we cannot is the time we lost. Scene 4, parent enters. Good afternoon teacher, after hearing this students, I just want to say thank you. We only do our duty, these kids are like our own. For us, it's more than duty. You shape their future, their character. In just 2 years, they leave this school, but they'll carry you in their hearts forever. That's all we wish for. Scene 5, principal enters. My dear students, you all remind us that school is not just for studies, but also about love, memories, bonds that we all created together. You still have 2 beautiful years. Enjoy it and learn with dedication
every moment, and the school will remain in your heart forever. Thank you. So the moral of our skit is school life teaches us that time may pass, but the lessons of our teacher and the laughter with our friends and the values we carry will remain with us forever. Thank you, Jazakallah. Happy Teachers Day. I would like to call class 7 students for poetry. मुसीबत में हौसला दे जो, अंधेरे में रोशनी दे जो, मुसीबत में हौसला दे जो, वो है टीचर, वो है टीचर, वो है टीचर, वो है टीचर। पकड़ कर चलना सिखाया, ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाया, पकड़ कर चलना सिखाया, ज्ञान का पाठ हमें पढ़ाया। वो है टीचर, वो है टीचर, वो है टीचर, वो है टीचर। आज के दिन आपको हम करते हैं दिल से सलाम, आज के दिन आपको हम करते हैं दिल से सलाम। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। Part of our program, expressing our love and gratitude towards dear teachers. Today, to honor every teacher, we would like to invite them on stage to present them a small token of love from their students. Assalamualaikum everyone. I would like to call Bashir Nisa ma'am on the dais for certificate distribution. Rishma ma'am is our ex-teacher and she is the director of Wisdom Tutorials. A round of applause. Now I would like to call Hamzat sir to receive a precious gift from class 10 students and say a few words. Excellent, mashallah. I love watches always. हाँ माशाल्लाह, बेहतरीन टीचर्स डे। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे हमारे तमाम टीचर्स को। एक चीज मैं हमेशा से कहते हुए आया हूं कि किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड उनके टीचर्स के स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। एक स्कूल कैसा है, एक स्कूल किस लेवल का है, एक स्कूल किस स्टैंडर्ड का है, ये हमेशा सेट होगा उसके टीचर्स की एबिलिटी, उनके स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस और उनके टैलेंट से। जितने अच्छे टीचर्स होंगे उतना अच्छा स्कूल का लेवल होगा। अच्छे स्कूल के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स भी शायद जरूरी है, टॉप लेवल ये सब कुछ अरेंजमेंट्स जरूरी है, लेकिन ये एक स्कूल नहीं बनाते हैं। स्कूल सिर्फ स्कूल के टीचर्स ही बनाते हैं। जितने अच्छे टीचर्स हैं उतना अच्छा स्कूल होगा। तो ये एपेक्स को ये एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी प्राइज है एपेक्स के लिए कि एपेक्स के पास जेम्स है, टीचर्स के क्रीम्स एपेक्स के पास है माशाल्लाह। हमारे पास मैं एक छोटी सी अपने 5 मिनट्स में एक हमारे टीचर्स को इंट्रोड्यूस भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा इंशाल्लाह। हमारे पास टीचर्स ऑफ टीचर्स है, टीचर्स के टीचर है हमारे पास, टीचर ऑफ द टीचर्स। बोलिए कौन है वो? जावेद सर है हमारे पास माशाल्लाह, टीचर ऑफ द टीचर्स। उसके बाद एक और है हमारे पास टीचर ऑफ द टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसी चीज है हमारे पास, यकीन मानिए आने वाले 30-40 इयर्स में भी एपेक्स यही लेवल पे रहेगा, इसमें कभी अप डाउन नहीं आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो हमारे टाइकून्स है और ये जो हमारे लीजेंड्स है, ये परमानेंट एपेक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जेबा मैम, मैं यहां पर इंडिविजुअली एक एक टीचर को हमारे थैंकिंग करूंगा उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। उनको 1 ईयर के जो काम है उसको अप्रिशिएट करना मेरी जिम्मेदारी है एज ए डायरेक्टर। तो सबसे पहले जेबा मैम, एक जेबा मैम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे पास।
जेबा मैम के बारे में बोलने के लिए अल्फाज शायद कम पड़ जाएंगे। शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह, टू मच हार्ड वर्किंग। मैम के लिए माइक की जरूरत नहीं पड़ती। मैम ग्राउंड फ्लोर से बोले तो थर्ड फ्लोर तक मैम की आवाज जाती। ये एक खास एबिलिटी, एक स्किल है मैम के पास। हमारे किसी भी काम में, किसी भी वक्त, किसी भी चीज के लिए एक आवाज में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं ये कहूंगा कि जेबा मैम हमारे ट्रबल शूटर है। ट्रबल शूटर का टाइटल मैं पहले सबा को देता था, अब मैं वो टाइटल जेबा मैम के लिए शिफ्ट कर दिया हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं जो फील करा हूं पिछले 7-8 ईयर से, कंटिन्यू मेरे साथ ठहर के काम करना। अच्छा, कभी रमजान में काम रहता था तो 3 बजे रात को, 4 बजे रात को शहरी में मेरे को कोई काम याद आ गया स्कूल का, तो मैं 3:30 बजे, 4 बजे रात को बिला झिझक कॉल करूं तो मेरे एक कॉल को एक रिंग में पिकअप करने वाले, और रात में 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फजर में। अच्छा, कभी क्या होता, रात में बारिश हो जाती है अचानक, 12 बजे, 1 बजे रात को डी ऑफिस से मैसेज आता कि बारिश हो गई, कल मॉर्निंग छुट्टी रहेगी। टाइम उस वक्त 12:30 होती। अब 12:30 बजे कल के मैसेज टाइप करके फॉरवर्ड करना है, तो 12:30 बजे रात को नींद में से एक रिंग में कॉल उठाने वाले नौशीन मैम है हमारे। मैम को कॉल करते वक्त यकीन मानिए, मैं सही बोल रहा हूं, कभी वॉच नहीं देखा किस वक्त मैं मैम को कॉल कर रहा हूं और क्या टाइम हो रहा, मैम सो रहे हैं या होशियार होंगे, मैं उसको कभी भी नहीं देखा। हमेशा मैम मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते, और कभी भी कॉल उठा के मैम मेरा काम इमीडिएट कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह, नौशीन मैम अगर यहाँ नहीं रहते तो शायद ये एपेक्स ये लेवल का नहीं रहता पाऊंगा। ये एक मैं जिम्मेदारी से बोलूँ। एपेक्स के बारे में एक बात हमेशा बोली जाती कि एपेक्स में नहीं, सैलरीज बड़े ऑन टाइम मिलते भाई। कभी आज तक 7 साल में सैलरी के लिए 1 या 2 दिन लेट नहीं हुआ। इसका क्रेडिट भी नौशीन मैम को जाता। हमारे पेरेंट्स का कॉलर पकड़ के मैम फीस निकाल लेते, और वो चीजें यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबल के लिए बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड, हमारे पास प्रिंसिपल मैम के और हमारे पूरे स्टूडेंट्स के फेवरेट सुपरस्टार, हमेशा एंग्री वुमेन का आजकल टाइटल दे रहे हैं कुछ टीचर्स, उनको मैं देख रहा हूं मुसलसल एंग्री वुमेन का टाइटल दे रहे हैं। अभी यहां पर एक शेर उनके लिए बोला गया तो उसमें भी बड़ गुस्से को ऐड करे। मैं वही शेर सुन के बोला कौन लिखे ये बराबर लिखे, तो 10 टीचर्स की जगह एक सुबह होना काफी है हमारे लिए। 10 और टीचर्स की जगह एक सुबह रहे तो काफी है। एपेक्स लिटिल स्टार स्टार्ट किए थे, मैं मैम मसरूफियत की वजह से वहां नहीं जा सक रहे थे, तो सुमेरा के हाथ में उसका इंचार्ज दिए। उसके बाद फायदा यह हुआ एपेक्स से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स एपेक्स लिटिल स्टार के आना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह। थैंक यू सुमेरा, आपके बेहतरीन वर्क है, यकीन माने बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल एपेक्स में एक नए स्टार क्रिएट हुए, नए स्टार ऑलराउंडर। आप अब क्रिकेट टीम के हिसाब से आप ये हमारी टीम को देखें, ये मेरी जो टीम है इसको आप क्रिकेट टीम के हिसाब से देखें तो हर क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर रहता। ऑलराउंडर के बगैर क्रिकेट टीम कंप्लीट नहीं होती, और ऑलराउंडर के बगैर मैच नहीं जीता जाता। ऑलराउंडर के बगैर मैच नहीं जीता जाता। तो ऐसे 2 ऑलराउंडर मेरे पास है। फर्स्ट हमारे नबीला मैम, सेकंड नेहा। नेहा एक ऑलराउंडर है। आप नेहा को कभी भी कुछ भी काम दे दीजिए, नेहा कंप्लीट करके आते। कभी कभी इनकम्प्लीट भी रखते, अक्सर इनकम्प्लीट रखे हैं आजकल। जरा जहन कहीं और है नेहा मैम का, तो तबीयत भी ठीक नहीं है जरा, मगर थैंक यू नेहा, आपका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और नबीला मैम के बारे में अगर ये कहा जाए कि नबीला मैम आपके राइट हैंड है सर, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली राइट हैंड है। अगर ये पूछे कि नबीला नियाजुद्दीन आपका काम खराब होता क्या सर, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली 100% काम खराब रहता मेरा। तो थैंक यू नबीला, आपका बेहतरीन कोऑपरेट है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। तो एक और ऑलराउंडर है आजकल, स्पेशली वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट स्टेज पे ले गए हमारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नर्सरी में तो जान डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शिरीन मैम हमारे। आज भी देखिए सब टीचर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी में अपने अपने काम कर रहे हैं, बेचारे उनको रिकॉर्डिंग देके बिठा दिया यहाँ पर। तो अब ये वीडियो जो शिरीन बना रहे 1 आवर में इंशाल्लाह यूट्यूब पे एडिट होकर अपलोड हो जाएगा। तो शिरीन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शिरीन हमेशा एक्टिव रहते और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शिरीन को हमेशा इसी रखे। तो
सुपर एक्सपीरियंस बीएच और परफेक्ट और हमेशा मैम के साथ कोऑपरेट करने वाले हमारे बुतुल मैम, नसीम मैम और हमारे जो सीनियर टीचर्स है पूरे तमाम इंडिविजुअली, सफारा खासकर हमारी माशाल्लाह सफारा सबसे छोटी है एज में हमारी सफारा, लेकिन सबसे हार्ड वर्कर, सबसे दौड़बाज। मैं समझता हूं ये जो स्टेयर केस है हमारा यहाँ पर, लिफ्ट तो अभी 1 वीक पहले लगी, ये स्टेयर केस है, ये स्टेयर केस को मैं समझता हूँ सफारा 25 चढ़ते उतरते रोज। तो माशाल्लाह अच्छा है, सेहत के लिए भी जरूरी है ऊपर चढ़ना उतरना। खाइए अच्छा जरा बस, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं सफारा। न्यू कमिट में हमारे प्रिया मैम जैसे टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में रहे तो वो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली एक ग्रोथ करेंगे और हैदराबाद के अच्छे इंस्टीट्यूट में होगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रिया मैम को और उम्मीद करूंगा कि प्रिया मैम लॉन्ग टाइम हमारे साथ काम करें। सौजन्या मैम अभी ज्वाइन किए हैं हमारे पास। मैम हमेशा सौजन्या मैम की तारीफ करते हैं कि मैम अच्छा वर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ मैम दीनियात पढ़ा रहे हैं, जितने हम दीनियात के वीडियोस देखते हैं, दीनियात के प्रेजेंटेशन देखते हैं, अशरफ मैम का इसमें बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हुमेरा मैम अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुमेरा की हमारे पास हैट्रिक है, 1 2 3 हुमेरा है हमारे पास, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऑलराउंडर है, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे मरियम मैम, सना सुल्ताना मैम और थोड़े स्टाफ में है तो मेरे को नहीं पहचाने जाते, सॉरी मैं फेसेस स्टाफ में नहीं पहचाने जाते। मेहदिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक टीचर का मैं इंडिविजुअली शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पर। आप लोगों की मेहनत है कि एपेक्स अल्हम्दुलिल्लाह लेवल पे आया है। हमारे साथ इब्राहिम फैसल भाई है। इब्राहिम सर मेरी रिक्वेस्ट पे एपेक्स आ रहे हैं, इब्राहिम सर मेरी रिक्वेस्ट पे एपेक्स आ रहे हैं। एक इत्तेफाकी मुलाकात हुई थी मेरी इब्राहिम की, तो मैं पूछा आप क्या करते, तो सर बोले मैं टीचिंग करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब मैं बोला कब तक ट्यूशन पढ़ाते, अब आके स्कूल में पढ़ाएंगे। तो मेरी इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करें, आपका शुक्रिया। और हिंदी बहुत इंप्रूव हुई है इब्राहिम से और इब्राहिम का एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मैं एक एक्सपेक्ट करता हूं कि इब्राहिम भी फ्यूचर में स्कूल खोलेंगे और एपेक्स की तरह चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जैसे आप एक देखते हैं ना, एक खूबसूरत केक आप डिजाइन करे हैं, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, तो वो केक के ऊपर एक चेरी होती है हमेशा, तो वो रोल प्ले करते हैं हमारे नसीम सर हमारे स्कूल में। नसीम सर के मौजूदगी से स्कूल में खैर बरकत भी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की एक आवाज स्कूल में हमेशा आती रहती है, कुरान की एक तजवीद की और कुरान की आवाज नसीम सर की बरकत से रहती है। मैं नसीम सर का, हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त एपेक्स के लिए दे रहे। आपकी वजह से हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रूवमेंट आया है। ये तो हमारे स्टार्स है, ये हमारे टीचर्स है। इसमें 1 2 3 नाम बहुत खास है, 1 2 3 नाम बहुत खास है हमारे पास। वो खास नामों में है 2017 से लेके 2025 तक पार्ट ऑफ एपेक्स, एपेक्स की हर प्रॉब्लम में हर टाइम एपेक्स के साथ हमेशा अवेलेबल रहने वाले। एक पीरियड ऐसा आ गया था 2017 के मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में, तो वो बहुत हार्ड टाइम था। तो एक बच्ची के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे हम लोग। वो बच्ची 4-5 मंथ्स में स्कूल छोड़ के चलेगी, तो वो स्कूल छोड़ के जाने के बाद थोड़े अप डाउन आना स्टार्ट हुए, थोड़े प्रॉब्लम्स हुए। मैं भी नया था, मैम भी बेचारे मेहनत कर रहे थे, मेरे को स्कूलिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं उस वक्त स्कूल भी नहीं आता था ज्यादा। तो वो बच्ची अचानक एक रिजाइन करके स्कूल से चलेगी। तो मैं रात में 11 बजे नाफिया को फोन करा, नाफिया को फोन करके पूरी स्टोरी सुनाया, नाफिया ऐसा ऐसा हुआ स्कूल में, क्या करेंगे बोला। तो दूसरे नाफिया बोले कल सुबह मैं बोलती हूँ सर बोल के। दूसरे दिन नाफिया ऐसा, मेरे को वो शॉट याद है, नाफिया ऐसा बुरखे की अस्तीन चढ़ा के, सर मैं हूं ना, मैं संभाल लेती हूँ, अब टेंशन रखो, कुछ भी हो। तो नाफिया के वो वर्ड्स हमेशा मेरे को जिंदगी भर याद रहेंगे। वक्त निकल जाता, बात हमेशा याद रहती। तो नाफिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एपेक्स में, और इंशाल्लाह अभी नाफिया मैम बता रहे थे 1-2 महीने में वो कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। श्योर ना मैम? तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम चीज है, मैम स्लिप्स भेजते जा रहे हैं लेकिन मेरे को याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और ऐसे ही मैथमेटिक्स के चैंपियन, बीटेक एमटेक ना मैम, बीए बीटेक प्लस बीए सुपर स्टार हमारे मैथमेटिक्स के फैजा मैम, फैजा मैम
फैजा मैम को आज के कॉर्पोरेट जॉब मिल गई, 50-60 हजार रुपए कमा रहे मैम आराम से। लेकिन एक खासियत ये है मैम की किसी भी इन्विटेशन में हमारे पास 1 सेकंड में आ जाते मैम। तो मैम पार्ट ऑफ एपेक्स है और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सईदानी मैम थे, मैम को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम इत्तेफाक से मेरी मैम से भी ऐसे ही मुलाकात हुई थी जैसे इब्राहिम से हुई। तो मैम से बातचीत के दौरान फिर पता चला मैम किसी स्कूल में तेलुगु पढ़ा रही, तो फिर मैं एक छोटा सा अपनी तरफ से ऑफर दिया। तो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया और पार्ट ऑफ एपेक्स है। इंशाल्लाह आइंदा मैम के साथ एक कमिटमेंट है कि मैम आइंदा 10 साल तक एपेक्स में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक अहम चीज है जावेद सर और आपकी ये पूरी टीम है, तो इंशाल्लाह इससे एक उम्मीद रख सकते हैं कि एपेक्स इससे बहुत तरक्की करेगा और बहुत डेवलप होगा और बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि सर एपेक्स अच्छा चल रहा, अमजद भाई बहुत अच्छा चल रहा, पिकअप हो गया। तो मेरा आंसर हमेशा ये होता है कि अभी एपेक्स स्टार्ट ही कहाँ हुआ, अभी एक स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो वार्म अप है हमारा। ये जो आप अभी देखे हैं ये सिर्फ वार्म अप है, यकीन मानिए आप। मैं इसलिए इसको वार्म अप कह रहा हूं, इसलिए अभी ये कह रहा हूं कि अभी एपेक्स स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारा 10 का कोई बैच नहीं आया, हिफ्स का हमारा कोई अभी बैच नहीं आया। तो इंशाल्लाह जब हमारे 10 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, हमारे हिफ्ज़ कुरान के बैचेस आना स्टार्ट होंगे, तो वो हमारा पिक टाइम होगा। ये कोई पिक टाइम नहीं होता, ये वार्म अप की तरह मैं इसको देखता हूं इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में 10 के रिजल्ट्स के साथ कोशिश ये है कि हर साल कम से कम एक हाफिज कुरान यहां से हम लोग प्रोवाइड करें। आने वाले दिनों में एक हाफिज कुरान व्हाट्सएप लगा के मैं व्हाट्सएप कम से कम एक हाफिज कुरान हम यहां से दें। रही बात टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीचर्स डे में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे टीचर्स को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक टीचर है जिनको अक्सर टीचर्स डे के मौके पर भूल जाते हैं, जो मेरी नजर में इस दुनिया के और इस कायनात के सबसे बड़े टीचर है। जी, इस दुनिया के और इस कायनात के सबसे बड़े टीचर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जब जहालत का अंधेरा हद से ज्यादा हो गया था, बच्चे पैदा होते ही उनको दफनाने का दौर जब चलता था, हर तरफ गुमराही का दौर था, तो उस वक्त अल्लाह ताला दुनिया के पहले टीचर को इस जमीन पे उतारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चाहे हम कितने भी अच्छे टीचर बन जाएं, चाहे हमारा स्कूल हमारा इदारा कितना भी डेवलप और ग्रोथ हो, हर हाल में हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना है। और ये जो स्कूल चलेगा, मैं रहो या ना रहो, मैम रहे या ना रहे, या हमारे बच्चे रहे ना रहे, एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रोटोकॉल्स में ये लिख के है, एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरीज में ये लिख के है, ये हमेशा सुन्नत नबी के मुताबिक चलेगा, ये कभी इस्लामिक एथिक्स से हटके नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे। इसके साथ एक अहम चीज है, ये हमारा एक इस्लामिक व्यू हो गया। इसके साथ एक और सेकंड पार्ट हमारा ये है कि डिजिटल रिव्यू, स्मार्ट टीचर्स। कभी हमारे बचपन में ये ख्वाब में तसव्वुर में भी नहीं सोचा जा सकता था कि कभी क्लासरूम में स्मार्ट टीवीज भी होंगे। वो दौर ऐसा था, घर में अगर टीवी आ गई तो ये कहते थे कि कितना आ गया, शैतान आ गया। ऐसा होता था ना मैम, घर में टीवी आ गए तो ये बोलते थे कितना आता था, कितना आ गया, शैतान आ गया। लेकिन अब दुनिया उसको जरूरी समझी, अब वो घर से निकल के क्लासरूम के हद तक भी आ गया। तो जैसे क्लासरूम डिजिटल हो गई, उसी तरीके से टीचर्स को भी स्मार्ट और डिजिटल होना पड़ेगा। आप ये 2025 है और 2025 में हम स्कूल चला रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन इमेजिन करके देखिए मैम, 10 साल के बाद ये इंडस्ट्री किधर जाने वाली है, स्कूलिंग किधर जाने वाला है, टीचिंग फील्ड किस तरह जाने वाली है, आने वाले 10 साल में कौन सा दौर आने वाला है और टीचिंग के मेथड्स क्या होंगे। तो कोई टीचर यहां पर एज ए टीचर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। एक टीचिंग करने की वजह यह है कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो यहां पर आगे थोड़ी देर पढ़ा ले रहे हैं ताकि 10-15-20 हजार रुपए आ गए तो घर को फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए। एक टीचर वो होते हैं जिनके अंदर टीचिंग की डेडिकेशन होते हैं। यहां मैं जानता हूं, मेरे पास मेरी टीम में 2-4 टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत वेल सेट फैमिली के हैं और उनको ये सैलरी की कोई अहमियत नहीं रहती। मैं जानता हूं 2-3 नाम है ऐसे। अब मैं किसी का पर्सनल ऐसा, सर हमारी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, आप बोलेंगे फिर। तो वो यहां पर आ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए, अपनी डेडिकेशन, अपने एक
शौक के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स है जो एक डेडिकेशन के लिए आते हैं, एक शौक के लिए आते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं टीचर बनी हूं तो टीचर की हैसियत से ही फिर इस दुनिया से जाऊंगी, मरूंगी। तो अब ये टीचर्स जो हमेशा हमेशा टीचिंग फील्ड में है, तो अब उनका वक्त आ गया है कि अपने आप को जमाने के हिसाब से, अपने आप को इस दौर के हिसाब से अपडेट करें। ओल्ड टीचर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर नहीं है। अगर हमारे पास में एक दो टीचर्स ओल्डेड है तो मैं ये कहते हुए बुरा नहीं मानूंगा कि हम उनको बर्दाश्त कर ले रहे हैं, हम उनको थोड़ा बर्दाश्त कर ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी मार्केट में नहीं चली गई, मेथड ही नहीं चलने वाला है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्कूल्स में अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं और थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे जा रहे हैं। तो टीचिंग इंडस्ट्री को भी इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं टीचर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एआई, चैट जीपीटी, टीचिंग मेथड्स को सीखिए और यहां पर क्लासरूम में आके इंप्लीमेंट करिए। इसके साथ एक अहम दो अनाउंसमेंट्स थे जो मैं कभी कभी भूल जाता हूं, तो इसलिए अनाउंसमेंट्स लिख के ला लिया था। एक शॉर्टली एपेक्स तरबिया एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी काम करना, शायद नेक्स्ट संडे से एपेक्स तरबिया एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन चल रहे हैं, नबीला देख रहे हैं एडमिशन को, काफी एडमिशन हो रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। एपेक्स तरबिया एकेडमी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में हमारे टीचर्स के जरिए जो दी जा रही है वो है तालीम, एजुकेशन। तरबियत एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तरबियत की जरूरत उतनी ही है जितनी तालीम की जरूरत है। तो वो तरबियत एकेडमी स्टार्ट करे हैं हम लोग, नेक्स्ट संडे से उसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तरबियत एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, कोई 10 इयर्स के हैं, तो प्लीज तरबियत एकेडमी में रजिस्ट्रेशन कराइए। और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट सफ में तरबियत एकेडमी के हमारे टीचर्स के बच्चे बैठे। रेवोल्यूशन जो होता है अपने घर से होता है, अपने घर से उसकी शुरुआत होती है। हिफ्ज एकेडमी स्टार्ट करे हैं, हिफ्ज करेंगे बच्चों को, तो पहला हमारे घर से स्टार्ट हुआ। हमारे बच्चे हिफ्ज करें तो पूरी दुनिया के बच्चे इंशाल्लाह हिफ्ज कर लेंगे यहाँ पर। तो रेवोल्यूशन जो होता है अपने घर से स्टार्ट होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे टीचर्स से कि वो अपने बच्चों का नबीला के पास इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कराएं और नेक्स्ट संडे से 2 आवर्स के क्लासेस होंगे, अपने बच्चों को तरबियत एकेडमी के क्लासेस में ज्वाइन कराएं इंशाल्लाह। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सोसाइटी में टीचर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ज्यादा शॉर्टेज है सोसाइटी में टीचर्स का। तो यही चीज को जहन में रखते हुए एक नई एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं, एपेक्स टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एपेक्स टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर से उसके एडमिशन स्टार्ट होंगे, जनवरी से टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी काम करना स्टार्ट कर देंगी। टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी काम क्या करेंगे मैम, ये 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। एवरी वीक 2 या 3 दिन यहाँ पर क्लासरूम शेयर करने देंगे न्यू कमिंग टीचर्स को। क्लासरूम कंट्रोलिंग, लेसन प्लान डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, होमवर्क डिजाइनिंग, ये सब कुछ 3 मंथ्स में उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद उनको एपेक्स से सर्टिफिकेट दी जाएंगी और उसके बाद जो बेहतरीन टीचर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद के जो टीचर्स हैं उनको जॉब के लिए इंशाल्लाह दूसरे स्कूल से रिकमेंड करके भेज देंगे। 5000 रुपीज उसकी फीस रहेंगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि टीचर्स हमारी टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करें और जो अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने नेबर्स में, अपने अपने उसमें बच्चों को इंकरेज करें कि एपेक्स आए और टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स करें। अच्छा कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट रहेंगी, यहां से सीखेंगे, कम से कम 15,000 सैलरी के वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ये स्टार्ट करने का एक मकसद ये है कि हमारे बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाए, ऐसा बनाए कि कम से कम वो 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के काबिल हो जाए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मैम, उस पर आप लोगों की हेल्प की जरूरत है मेरी। फाइनली लास्ट चीज अहम, एक नया फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूं। पहले से चल रहा था, जून से फिर ऑफ हो गया था, उसको जून से स्टार्ट नहीं करे हम लोग वापस। इसीलिए स्टार्ट नहीं करे क्योंकि मैं उसको वेल डिजाइन करने के बाद फिर टीचर्स जैसे स्टार्ट करूंगा। 2-3 मंथ्स पहले ही प्लान करके रखा था इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता था मालूम है, एक छोटी एग्जाम्पल से बताऊं मैं। 2018 में एक बच्चा हमारे पास पढ़ता था स्कूल में, नौशीन को इसकी पूरी डिटेल मालूम है। तो वो बच्चा बहुत दिन से फीस पे नहीं कर रहा था, बहुत दिन से फीस पे नहीं कर रहा था। बहुत बार पेरेंट्स को बोले, उनके मदर आए तो फिर मैं को पूछा तो उन्होंने बहुत दर्द भरे अंदाज में बोले उनके वालिद का इंतकाल हो गया, भाई कोई भी नहीं है, मैं थोड़े थोड़े पे लाके पे कर देती हूँ। तो वालिद का इंतकाल हुआ जो सुनना, तो फिर मेरे को भी एक बड़ी तकलीफ हुई। फिर उस वक्त नाफिया वगैरह से सबसे मशवरा करने के बाद
एक चीज डिसाइड करें कि इसकी फीस माफ कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके अपन ही पे कर देंगे वो। तो मैं स्टार्ट करा, मेरे साथ ये बच्चियां नातिया, नौशीन, फैजा वगैरह सब जने, नहीं सर इसमें थोड़े थोड़े हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते होते। तो वहां से एक ऑर्फन फंड का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद पूरे टीचर्स 100 रुपीज सैलरी लेने के बाद वो ड्रॉप बॉक्स में डाल के चले जा रहे थे। तो उससे हम लोग 8-10 बच्चों की फीस पर ईयर पे कर ले रहे थे। तो फिर जून से उसको स्टॉप करें हम लोग। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स का स्टाफ 50 प्लस हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब एपेक्स का स्टाफ है। तो अभी ये सितंबर से इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक दौर में 100 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, आज 850 स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही नहीं, अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे पर हेड 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज अपनी सैलरी में से जो मुनासिब दिखे आप वो ऑर्फन बॉक्स में दीजिए। अभी आज से सितंबर 2025 में 8,000 रुपीज हम जमा करेंगे। लेकिन जब मैं ये बात बोलता था 2018 में कि एक दिन आएगा मेरे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ेंगे, तो उस वक्त जो चीज आउटडेटेड दिखती थी लोगों को, सर फेंक रहे, सर बड़े बड़े हवा देख रहे, हम जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बोलते हैं। आज 1000 बच्चे मेरे स्कूल में है या नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कॉन्फिडेंस से एक बात बोल रहा हूं मैम, मेरी बात सुनिए। मैं आज यहां पर ठहर के बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, ये एपेक्स फंड बहुत जल्द महीने को 1 लाख रुपए जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये पैसे हमारे वहां पर खर्च, ये पैसे हमारे कहां खर्च होंगे? मोहल्ले में एक भी यतीम बच्चा, एक भी गरीब बच्चा फीस की कमी की वजह से स्कूल ड्रॉप ना करे, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। ये सैलरी में से 100-200 रुपए जमा करके फिर इसको वो लेवल तक ले जाएंगे कि मोहल्ले के हर बच्चे की फीस एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल से पे करेंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। यहां पर आए, एप्लीकेशन दे, फीस कार्ड जमा करें, नौशीन से अपनी फीस लेके जाए बस। तो ये काम करेंगे मैम, इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे मेरा इसमें। नो मैम, इसमें क्लास की जरूरत नहीं है, इसमें एक जज्बे की जरूरत है, इसमें जज्बे की जरूरत है। मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, तो मेरे बच्चे के बेंच पे जो बाजू बैठा हुआ बच्चा है, मैं एक यतीम बच्चे को देखना चाह रहा हूं, एक गरीब, एक मोहताज बच्चे को देखना चाह रहा हूं मेरे बच्चे के बाजू बैठ के पढ़ते हुए। तो ये मेरा एक बिग ड्रीम है और ये ड्रीम आप लोगों की हेल्प से पूरा होगा इंशाल्लाह। तो इस मंथ की सैलरी से मैम, इस मंथ एनवेलप से नहीं आएगा, आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट स्टार्ट हो गया है। आप पहला काम घर जाते ही अपने पासबुक का लास्ट पेज मेरे को, आदिल सर को फॉरवर्ड कर दें, सैलरीज जो है ना अकाउंट में फॉरवर्ड कर दी जाएंगे। अब सैलरीज नहीं मिली तो फिर पैसे डब्बे में कहां से डालेंगे? ऑनलाइन नहीं है, घर से आते को 100-200 रुपए ला लीजिए ना, ऑनलाइन मत डालिए, ऑनलाइन के भी पैसे कर रहे हैं आजकल। तो प्लीज इस मामले में आप लोगों की हेल्प चाहिए मेरे को। तो इंशाअल्लाह ताला एपेक्स ऑर्फन फंड मोहल्ले के तमाम यतीम बच्चों की किफालत करेंगे। आज के टीचर्स डे पे इस जज्बे के साथ हम इस बात को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और एक अहम चीज, खास चीज, यहाँ पर 2 पर्सनालिटीज, 2-3 डिग्निटीज बैठे हुए हैं, 2-3 पर्सनालिटीज जो एपेक्स के साथ हमेशा है और इंशाल्लाह मेरे साथ हमेशा है, और एपेक्स और मेरे साथ हमारे लास्ट डे तक हमारे साथ रहने वाली हमारे 2-3 खास पर्सनालिटीज। हुबैब मोहम्मद मास जो स्कूल के स्टार है, हमारे सुपर स्टार है स्कूल के, तो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, फ्यूचर के हमारे इंशाल्लाह डायरेक्टर है। दूसरा हमारे जहीर भाई, सबका जिक्र करके जहीर को नहीं छोड़ सकते हम। जहीर डे ऑफ, मैं एपेक्स का नाम मैं और जहीर मिलकर डिसाइड करें, ये एक बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं और जहीर मेरी मेडिकल स्टोर में बैठे बैठे एपेक्स का नाम डिसाइड करें। एपेक्स एक्चुअली एक दवाओं की कंपनी का नाम है, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, वो तो फिर एपेक्स जहन में आया तो एपेक्स रख दिया। मैं जहीर मिलकर नाम एपेक्स थे, तो जहीर के लिए एक क्लैप थोड़ा सा नाम प्लीज। सर हमारे सबसे बड़े ट्रबल शूटर, आधी रात को भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमेशा पूरे स्टाफ की जबान पे एक ही रहता है, इदरीस भाई। तो इदरीस भाई के लिए भी मैम एक क्लैप प्लीज। तो ये मेरी टीम हो गई थी। ऐसे ही प्रिंसिपल मैम की भी एक टीम है जो यहाँ पर है, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से ताहयात प्रिंसिपल मैम के 2 लोग दोनों शोल्डर्स के पास हमेशा खड़े रहेंगे। एक हमारे निखत मैम यहाँ पर है, तो निखत मैम के लिए एक बेहतरीन प्रिंसिपल मैम के ये साइड निखत मैम को मैं जिंदगी भर देखना चाहता हूं, और एक दूसरे साइड हमारे आयशा बाजी को हमेशा देखना चाहता हूं जिंदगी में। तो ये 2 शोल्डर से हमारे प्रिंसिपल मैम के खास दोस्त हैं दोनों भी, और दोनों का हमेशा मैम के साथ मशवरे, मैम कोई खास एडवाइजर्स और कोई खास चीजों में प्रिंसिपल मैम के साथ हमेशा रहते हैं। शुक्रिया आयशा बाजी और निखत मैम का कि इस प्रोग्राम को अटेंड करे।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सर एक घंटा हुआ तो ये बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो जहन में रहते वो खास मौकों पे ही बोलना था। मकसद वाले स्कूलों को हमारे कौम में बीच रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अमजद सर, तहसीन मरियम को। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम मकसद के लिए कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बस यही दुआ है कि हर कौम का बच्चा ऐसे एक अजीम मकसद को लेके आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह शुरू से जो सर बोल रहे कि माशाल्लाह एक छोटे पैमाने से शुरू हुआ था स्कूल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हमेशा मेरी भी यही दुआ थी कि अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम स्कूल की खासियत यह है कि दुनिया के साथ दीन को ज्यादा तरजीह दी जाती है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक जो भी काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें दीन को अहमियत दी जाती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तहसीन मरियम और अमजद सर को ये नज़्म मंसूब करूंगी कि उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी के खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, मजा तो तब है किसी के खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। माशाल्लाह ये इनकी कोशिशें रही माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला क्या है तमाम को ये स्कूल को जैसे क्या है तरक्की अता फरमा दे। एक अहम माशाल्लाह इस स्कूल में कोशिश ये है कि हिफ्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम है। और अभी एक बड़ी खुशखबरी हमारे लिए इस कौम के लिए यह है कि ये तरबिया अकेडमी भी खोल रहे सर। तो माशाल्लाह मैं यकीन मानिए एक दुआ करती थी, इस बस्ती में ही रहने वाली हूँ मैं, तो तैयबाद इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपना है। तो मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इस कौम के लिए रहमत बना, अल्लाह ताला इस कौम में रहमत बढ़ता, अल्लाह ताला बस्ती वालों को जगा दे फजर के लिए। थोड़ी ऐसी दुआएं दिल से होती थी बस्ती को देख देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्कूल खुला यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबिया अकेडमी खुली और ऐलान हो रहा है इस चीज का, तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानिए मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरी दुआएं कबूल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला मेरे को भी इस कौम का खादिम बना, अल्लाह ताला इस उम्मत का खादिम बना। और माशाल्लाह मौलाना यहाँ पर है, इसके तमाम माशाल्लाह तमाम सब लोग जुस्तजू में और आगे बढ़े इस कौम के लिए, इस उम्मत की, इस महल्ले के लिए। तहसीन मैम के लिए मैं एक शेर बोलूंगी, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं खुद की तैयारी करके बिल्कुल नहीं आई थी। तो आप सबको बहुत खुशखबरी है, आप एपेक्स के क्या है एपेक्स का एक हिस्सा है, जो भी तमाम टीचर्स है यहाँ पर, आप सब एपेक्स के हिस्सा, आप बहुत खुशकिस्मत है। इंशाल्लाह आपको दुनिया आखिरत के अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। एपेक्स के लिए भी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये सिर्फ अमजद सर अभी जो बोले कि सिर्फ 30-40 साल का एपेक्स नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जब तक हिदायत इस दुनिया में रहेंगे, जब तक एपेक्स जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमा, अल्लाह एपेक्स को भी कामयाबी अता फरमा। वाक़िअ दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि बाहर से कुछ चीजें को भी बुलाए, जिनमें हमेशा हर प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स की जो मदद है उन्हीं से बुलाए। तो आज के चीजें हमारे आफ्टरनून समय में माशाल्लाह आफ्टरनून समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल का जो बैनर लगाए थे, फर्स्ट एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल का बैनर लगाए थे, उसका नाम एपेक्स है। बस मुस्तकिल में इंटरनेशनल स्कूल हम लोग डिसाइड करे थे, बाद में मशवरे से भी वो एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल हुआ। तो जब फर्स्ट बैनर लगा के घर को गया हमें, उसके 1 आवर या 2 आवर के बाद पहला कॉल एडमिशन के लिए आपने समय का आया, फर्स्ट उसके बाद
हुमा सपा खाला के बाद फर्स्ट एडमिशन फॉर्म गया तो यूसुफ का गया था। यूसुफ एपेक्स का एडमिशन नंबर 5 है। फर्स्ट हुबैब है, सेकंड हुमा, थर्ड सपा, फोर्थ खाला, फिफ्थ यूसुफ, अफशीन, अमीन। तो ये सबसे पहले एडमिशन लेने वाले लोग हैं हमारे, और कभी भी एक सेकंड के लिए भी इधर नहीं है मैम, हमेशा एपेक्स के साथ खड़े रहे। लॉकडाउन आया, कई अप एंड डाउन आए, लेकिन मैम का हमेशा सपोर्ट रहा। मैम आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे। Apex International School for coming up with such an initiative to honor even the mothers, which never ever any educational institution might have done ever before. So this is almost like an encouraging part for the mothers too, who also have a great contribution, uh, which they render at their homes with their kids, I can say. Though in the private organizations, it is like many a times many employees, they have been recognized for their effort and being a mother also. But this is for the first time in an educational institution, the mothers have been recognized and have been invited as a chief guest. So this is really a very great thing, and we feel so proud and very thankful to you, Amjad sir and Principal ma'am. A very big thank from my end. The people who have already been a chief guest and who are going to be the chief guest in future will really have a great memories with us for being a part of this institution and our kids to be a part of Apex. And I'm not going to take much time because it's been already too late for everyone. It's time for Salah. But to share a few words about Teachers' Day, I have a great, what I can say is, this day means a lot for me because हर किसी के लाइफ में टीचर की कुछ इंपॉर्टेंस होती है. Even we were students at some point of time, and we were having some teachers as our favorite. So teachers are not just like they taught us some subject and we have learned and we have moved on. The part of things what we learn from them, the part of lessons they have taught us, we take it throughout our life. And there was one of my teacher who was very favorite to me. Her name was Miss Anuradha Verma. She has taught me so valuable things in my life, which I carried throughout the way. And it is because of that, that never I felt like it is not possible for me to carry on working as a woman with the 3 kids. People were so doubtful with us that being a mother of 3 kids, will she be able to do the job or not? But Alhamdulillah, I stand up, and there was a time that being with just 3 little kids, it was very tough for me to manage the things around. But with the same courage, the valuable things what my teacher has taught me, with the same intention, I have carried out throughout the way. And the time it was very situation like not manageable. Today, in the same stage, where 3 बच्चों को लेकर चलना जितना मुश्किल था, I'm working in an organization where I handle a team of more than 400 people now. So it's all about like the only thing what I believe what my teacher has taught me was just to believe in yourself and give your best. So nothing can stop you when you believe in yourself and give your best and leave the rest to the Almighty. So always do your best and give your best. I'm quite excited that this is for the first time the 10th class students are going to attend their academics. So all the best for you all, and we all have a very good blessings for you. We are expecting a good results from you all. So बस एपेक्स का नाम ऊंचा करिए. मेरी इंटेंशन जब यही थी कि हमने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया, बट दीन के साथ में तालीम लेना ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर. ये तरबिया का जो लफ्ज है ये बहुत मायने रखता है दीन में भी, दुनिया के लिए भी, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी. सो दिस मैटर्स अ लॉट. तो इसका नाम आप लोगों से स्टार्ट होगा तो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए ये चीज. सो व्हेन यू मूव टू द अदर वर्ल्ड, यहाँ से एपेक्स से जब मूव होंगे, you should be recognized that they are the students of Apex International School. So bring such a name to the institution. Okay. Well, once again, thank you so much, Amjad sir and Tehsin Marmiya ma'am. I'm so thankful that I have been invited here. Now I would like to call Principal Ma'am on the dais. Aisha Ma'am is going to felicitate Principal Ma'am. A round of applause, everyone.
respected chief guest, director sir, principal ma'am, my dear colleagues, even students are there here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Teachers Day to all those who are sitting here. As far as I am concerned, I am enjoying working in Apex International School with well-trained, educated and dedicated teachers, enthusiastic and talented students. So really enjoying a lot. And myself and my colleagues will try our level best to give the best possible result for the 10th class for this academic year. With the help of our students, are students there here 10th class? Acha, there only. Give best possible result. And as we are celebrating Teachers Day today, I would like to share a good news for our teachers, which was provided by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is a hadith which quotes, when a person dies, his record is closed and all the deeds are seized. No more good deeds or bad deeds in his or her account. But there are three things which continues to provide good deeds in their account. The first one is ongoing charity, sadaqah jariyah, like digging a well for poor, building a mosque, etc. As long as they work, we are going to be benefited from that. Second one, a righteous child who prays for them. A righteous child who prays for them after their death. And the good news for us is third one. Third one is the beneficial knowledge which they leave behind them. The knowledge which we leave behind us is going to benefit us even after our death. Good deeds are going to be entered in our records. ilm wale hazrat बैठे हुए हैं, please correct me if I am wrong. On the day of judgment, when records were given, inshallah we all will get our records in our right hands. Pray for that. Some people, after seeing the records, they will get shocked. They get surprised. We have not done this date, that date, but everything is there in my record. How it came? It comes through the knowledge which you are leaving behind you. I am very glad to say that, as Sir said, you are teacher of teachers. Many of my students are working as teachers here. So I am very glad to see that. So their good deeds are also entering my account. That's a good news for me. So inshallah, we will work very hard with the help of our students and teachers and try to give best possible results to Apex International Academy. Thank you. Teachers' patience and education inspires us to stay close to our faith. Sir, please come. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आप तमाम को आज के इस मुबारक पुरमसरत और मुबारक मौके पर तमाम असातिज़ा को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। उस्ताद क्या है, ये तो आपने हमारे अपने स्कूल के तलबा की ज़बानी बहुत सारी चीज़ें सीख ली। एक हदीस मैं आपके नजर करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम
मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। उस्ताज की अजमत पर सबसे बड़ी दलील है कि तुम में, कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो तालीम देता है, चाहे वो कुरान की तालीम दे या कोई और तालीम दे। इल्म इल्म है, इसलिए कि कुरान करीम में है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, सारी कायनात की हर चीज का इल्म उनको दिया। तो सारी चीजों का इल्म इल्म है। बहरहाल सबसे बड़ी दलील अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम को करार दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तो फिर हजरत आदम को वजूद बख्शा, तो वहां पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, आप सबसे आखिर में आए हैं, हजरत आदम सबसे पहले आए हैं। लेकिन जो तारुफ करवाया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, तो आपने सर उठाया, रूह फूंकी गई, आपने सर उठाया तो अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने पूछा, ए आदम ये मोहम्मद कौन है? फरमाया, अल्लाह मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आपने मुझे बनाया, मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी और मैंने सर उठाया, तो मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा, कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वो तो तुम्हारी औलादों में से सबसे आखिरी नबी हमारे हबीब है। उसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं दुनिया के अंदर बहैसियत मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं। कितना बड़ा फख्र है, कितना बड़ा एजाज है उस्तादों के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म की कदर करने वाला, और तलबा से गुजारिश है कि अल्लाह असातिज़ा की कदरदानी करने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको इल्म से जुड़ने और जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को और इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, इनकी जो नेक नियति है, अल्लाह इनके अंदर मजीद खुलूस और बरकतें और तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। He always encourages us and motivates us. We request you to please come and accept this small gift from class 10. We are not only teachers but also mentors who guide us, inspire and motivate us to do our best. We request you to come and accept this small token of love from class 10. Respected Director Sir, Principal Ma'am, esteemed dignitaries, and my dear students, and my dear colleagues. Today on the special occasion of Teachers' Day, I'm here standing you proudly because since morning I'm just listening to the word Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, and all. By listening to that word, I feel so complimented. I just feel so happy because as a part of Apex, I just want to share an experience. After joining Apex, I just feel that so inspiring and so delighted because after joining Apex, I feel every day as a learning, creativity, and every day just give me a chance to grow. Alhamdulillah. And after that, in the school, I'm just saying that this school is completely designed on academics of modern and Islamic education. We are not only focusing on modern education but also Islamic education. Students who are having dreams, the students who have got dream to memorize Quran, for them we have Apex Kids Academy. Scholars like Naseem sir and Adnan Ashraf sir guide them, inspire them, and teach them. And not only for the student, I want to appreciate for the students who are in the Kids Academy. They are balancing their academics and their kids also parallelly. And apart from that, our Apex International School has come up with a re-owned and remarkable step of Apex Tarbiyah Academy. That is nothing but, Tarbiyah is nothing but, it's not education. It's completely about upbringing. Upbringing of a child with normal, all the qualities. Qualities in a sense what?
with good and moral Islamic virtues. Not only we don't have our academic syllabus, like how we have maths, physics, and biology and social in our modern education. Tarbiyah Academy deals completely to the what I can say, completely based upon the Islamic virtues to the kids. The students can be build. The students can build their character, inshallah. So I just request every parent, every teacher here, or every student, inform your friends, inform your cousins that enroll in Apex Tarbiyah Academy, by which you can change your character, inshallah. And apart from this, I just want to thank Director Sir and Principal Ma'am that they have given me this opportunity to teach in the school. I'm just teaching my experience, like whatever I have, my experience and my methodologies. I'm teaching here with complete dedication, inshallah. And I want my 10 students, like first language, Hindi is there. So Hindi, Telugu and English, it's completely scoring subjects. So please focus on the academics. Don't procrastinate anything. Focus on the subject, and I just want to say that whenever you're feeling low, whenever you're feeling demotivated, don't lose your hopes. Okay, just try to improve in that. Okay, and if you're having any doubts, you can ask your teachers. You can come to us. We don't feel any type of hesitation to solve your doubts. And I appreciate all the teachers who are working hard here, and completely our principal ma'am, Amjad sir, Deva ma'am, and Sumera ma'am, even our administration teachers also, alhamdulillah. And I just want to thank my dear students that with you all, I am here. Because of you, my profession gives a meaning. Because of you, you give my profession as a meaning. So, big thank you to you all. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. On this auspicious occasion, as you all know, I am Sayyeda Nafia, a part of Apex International School since 8 years. Alhamdulillah. Jazakallah sir and ma'am for always honoring me, for always calling me and thinking me as a part of Apex. And uh, uh, teachers are the guiding lights of the society. Okay, teachers are nothing but the builders of the nation. So you have to be passionate enough. You should be proud of yourself. You are building the future of the nation. So you should be passionate, and you are the founders of the society. So how a teacher must be? You have to be a guider. You have to be a motivator. You should inspire the students. For always, you have to be the role model for the students, a mentor, and sometimes a friend. You should always balance. As a teacher, you should balance the whole thing. And you are a garden. You are a garden, and your students are the roses, the beautiful roses. So you are raising the flowers. You are raising the stars. So how you should be. And Alhamdulillah, I'm so happy. I'm so elated that today you all are here. My students are here. Inshallah, it will be a first batch for our 10th class first batch. We are going to give, inshallah, all the best, my dear students, 9th and 10th classes. Study well, and we are going to uplift the whole community. And I want to sum up my speech with a small quote that says that an ideal teacher is a light that leads us from ignorance to knowledge and from knowledge to wisdom. Jazakallah. Thank you so much. She always guides us in study. A teacher is like a candle which melts but gives light to others. From the first step from the kindergarten to the graduation. Teacher is the one who will be guiding the student, leading and guiding in the right path and also correcting the mistakes. With these words, I would like to give a short story. There was a student named Teddy who was studying in 5th standard, right? So every time, whenever his class teacher used to do the report cards, every time
she used to write negative about Teddy. But whenever the teacher comes on the Monday morning, immediately she says, every day, she says, the class teacher says, love you all. In fact, it is not true because it was Teddy who was not loved. Then the time came to issue the report cards, but first the report cards has to be on the desk of the headmistress. So when headmistress was seeing all the report cards, when Teddy's report was in headmistress' hand, she called Mrs. Thompson. Mrs. Thompson is Teddy's teacher, class teacher. She asked Mrs. Thompson, why did you write negative remarks? Then Mrs. Thompson said, he deserves it because he don't study properly. Then she called out all the admin and asked the admin to bring all the records of of this boy Teddy. When the progress reports were brought, the old records were brought. It was he was into third standard. Mr. Teddy, this boy was into third standard. In the fifth standard, the third standard report says Teddy, a brilliant boy. Then the fourth standard report said Teddy, whose mother was suffering with a terminal illness. The fourth standard report at the last says Teddy, who became an orphan, he lost his mother. Then Mrs. Thompson said, now I understood, Principal Ma'am, what I should write. Then the Monday morning came, she was all the students, love you all, but she was again lying. It was not she loving all the students, she was lying because the love towards Teddy grew very high. From that day, she was giving most full attention to Teddy. Then the teacher's day came, all the students gave the gifts in beautiful wrappers. Teddy also gave the gift, but it was wrapped in old newspaper. Everyone knows that it is given by Teddy and all the students were laughing. Then the teacher has taken the gift. She also knows that it is a gift from Teddy. When she has opened, there was a half-used perfume bottle and also one old bangle where some beads were not there in the bangle. And also a letter was written, these are my mother's last things. So whenever ma'am you apply the scent, I feel I can see my mother in you. So from that day, lot of inspiration was given to Teddy by Mrs. Thompson. Whenever she uses the perfume, Teddy can feel his mother was with him. The time came, Teddy has to go out of the school. Now after few years, Mrs. Thompson received a wedding invitation. An invitation is written by Mr. Theodore, PhD, Dr. Mr. Theodore. It was in United States and to and fro, 8 tickets were also there in the wedding card, right? So when the invitation was received, ma'am, it is you are like my mother, you are invited to my wedding. So I'm your child, I'm your student, Teddy. Ma'am was very happy. She attended the wedding and as she was entering, all the volunteers recognized her and ushered her to the special chair which was prepared by Teddy. A chair reserved only for that teacher, saying on the chair it is written mother. She was, the tears were rolling in her, so she came and as volunteers ushered her, she came and sat in the chair. But Theodore recognized ma'am and the ma'am was called onto the dais and he introduced this ma'am to his newly wedded wife, saying, she is my ma'am who taught me and she is also my inspiration. She is more than a ma'am for me, she is like my mother. You all are teachers here. The students are with you the whole day. More than in the family, the students are with you from morning till evening. See the students as your children, not as a teacher. First you should become teacher, first you should become mother, then become a teacher. Thank you so much.